First of all, I'm very grateful to Akshara International School, who have called me here today to give this intro talk. Now, in the world in which we live today, 10th boards के बाद हम सबके सामने एक choice आती है. A choice that determines our career path for the rest of our lives. मेरा जो choice था, my choice was to become a doctor. So naturally, 10th के बाद, I was faced with the same dilemma that faces every other science student, whether to opt for normal school or dummy school. So एक चीज बहुत क्लियर थी मेरे मन में कि इफ यू वांट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोचिंग हेल्प इज अ मस्ट. विदाउट कोचिंग, क्रैकिंग अ कॉम्पिटिशन इज वेरी डिफिकल्ट, बॉर्डरिंग इम्पॉसिबल. सो द थिंग इज कि मुझे उसके साथ नॉर्मल स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए. Now, I opted to take normal school with that. And today I would like to share with you all what was my reasoning, what were my thought process behind this decision. So, can we have the next thing, please? हाँ. So, dummy school में क्या होता है? Dummy school में your batchmates, they all are also focused towards the same exam. आपके जो teachers होते हैं, they are also focused on getting you through that exam. So the view that you get in a dummy school is, may I say, a little one-dimensional. और जो world है हमारा, world is not one-dimensional, world is three-dimensional. And to get that view, it is very important that you encounter people from different backgrounds, people who see the world through different lenses. And that is only possible when you are part of a school community. You know, I'm a NEET student, so I have to take some examples from NCERT textbook of biology. ये जो 11th 12th का फेज होता है, this is the later phase of adolescence. You know, 12th biology NCERT adolescence को कैसे define करती है? It is the period through which an individual becomes mature in his social and emotional reactions in order to take part effectively in the society. और ये डेवलपमेंट फेज के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. जैसे इफ आई टॉक फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, 10th तक मेरा जो फ्रेंड ग्रुप था, दैट वाज वेरी लिमिटेड. ओनली स्टूडेंट्स हु वर स्टडीइंग अ लॉट, हु वर गेटिंग लॉट्स ऑफ मार्क्स, मेरे फ्रेंड्स में बस वही आते थे. बट 11th में आई मेड a rather adventurous friend. His name is Varun Raze. I found that he is not very good in studies, but he is very street smart. तो उससे मिलके मेरा जो पर्सपेक्टिव था, द वे आई सॉ पीपल, आई इवैल्यूएटेड पीपल, दैट चेंज्ड, राइट. और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं ऐसे बच्चे से क्यों मिल पाया? बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ अ नॉर्मल स्कूल. एंड 12th में एक ASL प्रोजेक्ट होता है हमारा, where we have to do research on some problem statement, a problem statement that is not how to crack a competitive exam. उसके अलावा भी किसी प्रॉब्लम पे we have to think. It is a group project. तो उस प्रोजेक्ट में सपोज मैं एक वीक में अगर 1 आवर भी उस पर स्पेंड कर रहा हूँ, सो आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, नॉट जस्ट कंपटीशन कैसे निकालना है, क्या होगा, राइट. और वो टीम प्रोजेक्ट है, सो यू लर्न अबाउट कम्युनिकेशन, यू लर्न अबाउट लीडरशिप, you learn about critical thinking, which are all the advantages that you have in choosing a normal school. Can we have the next thing? The power of co-curricular activities. So, co-curriculars basically जो हमें करने चाहिए वो 3 types के होते हैं. One is you should have some physical exercise, which helps you keep healthy. See, ये quote है बहुत famous that a healthy mind resides in a healthy body, which is why physical exercise is very important. Second is some stress bursting exercise. So stress bursting exercise can be music, it can be dance, it can be painting, whatever your passion is. Co-curricular को हमें अगर include करना है, so it is not like we have to put a lot of effort into it. जैसे I learned singing throughout my 11th and 12th, but I am no connoisseur of music. I don't like songs, I do not listen to songs, I have no knowledge about them. But I still kept it in my routine just as an exercise to reduce my stress levels. And the third is meditation. Meditation, आज हमें लगता है कि we are so young, हमें meditate करने की क्या जरूरत है? But meditation is something that is no longer an option. It has become a necessity to keep our minds balanced. And अभी हमने जो co-curriculars की बात की, so it is written that it helps in skill development, maturity, personal growth,
skill development is not only in terms of your soft skills, but it also helps you in your academics. जैसे मैंने नॉर्मल स्कूल लिया, सो आई स्पेंड अराउंड एक दिन में 7 घंटे में स्कूल में रहता था, 5 घंटे हो सकता है मैं कोचिंग में रहता था, तो नेचुरली मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम बचता था, विच इज द मेजर कंसर्न कि नॉर्मल स्कूल क्यों नहीं। मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने एक दिन में कभी 2 घंटे ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं की होगी, एट मैक्स 2.5 आवर, दैट इज ऑल द सेल्फ स्टडी आई डिड। लेकिन जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो, सो योर माइंड नीड्स टू बी एट इट्स मोस्ट प्रोडक्टिव, यू नीड टू बी फ्रेश। और वो फ्रेश आपका माइंड तभी रहेगा व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन को-करिकुलर्स, जो आपके माइंड को रिन्यूड रखते हैं। तो 2 घंटे भी पढ़ो, बट इफ यू कैन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, देन इट इज बेटर देन स्लोइंग ऑन फॉर सपोज 6 आवर्स 7 आवर्स। उससे बेटर है यू डू इफेक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी। सो मूविंग ऑन, can you please change this slide? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, माइंडसेट एंड स्ट्रेटेजिक प्लान। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फोकस एंड रेजिलियंस। आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट यू वांट टू डू, राइट? एंड सेकंड इज रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब, सी, मेरा जो कोचिंग क्लास था, वी हैड अराउंड 15 स्टूडेंट्स इन माय मेन बैच। अब सेशन स्टार्ट हुआ, टीचर ने फर्स्ट चैप्टर कराया, they said that solve all the questions you can get, ask me doubts in the next class। फर्स्ट चैप्टर के बाद 12-13 बच्चे होंगे जिन्होंने अपना वर्क कंप्लीट किया, वो ask their doubts। बट जब सेकेंड चैप्टर हुआ, फिर से टीचर ने कहा सॉल्व योर मटेरियल, गेट मी द डाउट्स, तब ये नंबर बस 3 से 4 बच्चे बचते थे जो अभी अपना काम कर रहे हैं एंड हु आर स्टिल आस्किंग डाउट्स। और थर्ड चैप्टर के बाद ऑफन मैं अकेले बचता था जो अपना काम कर रहा है एंड हु स्टिल आस्किंग डाउट टू द टीचर। 2 घंटे की क्लास में अगर वो 1 आवर डाउट सेशन लेते थे, तो तब मैं और टीचर अकेले बात कर रहे थे, नो वन एल्स हैड एनी आइडिया। सो रेजिलियंस जो है, इट इज इजी टू टॉक अबाउट रेजिलियंस, इट इज अ स्मॉल वर्ड टू से बट अ डिफिकल्ट वर्ड टू इनैक्ट। तो रेजिलियंस को हम कैसे लाएं, हाउ टू गेट इट इनसाइड आवरसेल्व्स, राइट? तो रेजिलियंस लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अ स्ट्रैटेजी। जैसे इन माय 6th क्लास, आई वाज इन आईसीएसई बोर्ड। आईसीएसई में 6th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सेपरेट हो जाते हैं, वी हैड सेपरेट एग्जाम्स। तो 6th में जब मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया, सो माय मदर सॉ दैट आई हैड डिसेंट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज वेल एज बायोलॉजी। तो उन्होंने 6th में मेरा स्किल सेट रिकॉग्नाइज किया एंड शी एडवाइज्ड मी दैट आई शुड लुक फॉर अ करियर इन मेडिकल पाथ्स। तो उन्होंने ये क्यों कहा बाय मेडिकल पाथ्स? क्योंकि मेडिकल पाथ्स इज वेरी लॉन्ग सर्विंग, देयर इज नो रिटायरमेंट एज। मेरे मम्मी के ग्रैंडफादर, ही वाज अ डॉक्टर, तो शी सॉ कि जब वो 80 प्लस के भी हो गए थे, still people would call them to get his opinion, his medical opinion. And you can return back to the society in medical field. There is lots of scope for charity work. और स्किल सेट कैसे, ज्यादातर नीट के जो बच्चे होते हैं, they have this sort of phobia from mathematics. लेकिन ये बहुत सर्टेन फैक्ट है कि फिजिक्स 11th 12th का बिना मैथ्स को एक्सेप्ट किए उसे पढ़े नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। मैथ्स आपको पसंद नहीं है, आपको लेना नहीं है 11th में, दैट इज योर चॉइस, बट यू कैन नॉट हैव दैट फोबिया फ्रॉम इट, यू हैव टू कन्फ्रंट इट। तो दैट इज व्हाई मदर थॉट कि अगर मैं मैथ्स बायो बैलेंस कर रहा हूं, सो आई शुड गो फॉर मेडिकल। अब क्या हुआ कि मुझे 6th में अगर ये आइडिया मेरे मन में था, तो 9th 10th में मैंने अपने साइंस सब्जेक्ट्स पे एक्स्ट्रा एफर्ट दिया एंड कमिंग टू 11th आई बिकेम ऑलमोस्ट डेडिकेटेड टू दोस सब्जेक्ट्स जहां से रेजिलियंस आता है। आप लोगों ने अगर अभी स्टार्ट नहीं किया है तो इट इज नेवर टू लेट। रेजिलियंस कल्टीवेट करने में टाइम लगता है। आप 12th में सोचोगे 6 महीने बाकी है कि नाउ आई विल स्टडी वेरी हार्ड, नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो और हाँ, एक और चीज है कि यू ऑल में थिंक कि 6th से ही मैंने सोच लिया था यार मुझे मेडिकल करना है, तो आई जस्ट हैड अ प्लान। यू मस्ट हैव अ प्लान, बट प्लान्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल आल्सो। अगर मुझे बाद में लगता है दैट आई एम अनेबल टू कोप विद इट, then I could have changed my field. My mother gave me that freedom, right? और ये जो change होता है, this change should not come in between 11th and 12th. I have seen in my own class that there were some students जिनका 10th के बाद था they wish to go abroad and बीच में switch हो गया that no, we'll not go abroad, we'll do BSc here. But फिर क्या है, 11th 12th is a joint period of study. अगर आप उसके बीच में change करते हो, so it makes no sense. आप you will not move in with it.
इसीलिए प्लान जो है आपका कि आपको क्या लेना है 10th के बाद फाइनलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. अब टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैक्सिमाइजिंग स्कोर्स. तो कोई बहुत स्पेशल टिप्स नहीं है मेरे पास टू क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बट अभी हमने प्लान की बात की ना, तो प्लान जो होता है इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ इयर्स. और एक और चीज होता है आपका टाइम टेबल. टाइम टेबल आपका डेली हो सकता है, वीकली टाइम टेबल हो सकता है. इट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू राइट डाउन, इट इज जस्ट समथिंग यू नीड टू हैव इन योर माइंड एंड यू नीड टू अडहियर टू इट. आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि आप जो टाइम टेबल बना रहे हो उसे आप फॉलो करोगे, यू लिव अप टू इट. टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज एग्जाम टेक्निक्स. तो जब आप एग्जामिनेशन में हॉल में बैठे हो तो उसका जो प्रेशर होता है दैट इज बिगर देन एनीथिंग दैट यू हैव एवर फेल्ट. बोर्ड एग्जाम्स में भी वो प्रेशर नहीं होता जब आप किसी कंपटीशन में बैठे हो एंड यू नो कि अब ये 3 आवर्स में जो होगा वो डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में कहाँ लैंड कर सकते हो. राइट. यू नो जो AIR 1 लाता है और जो AIR 500 लाता है उनमें क्या डिफरेंस होता है. Difference is the difference in their preparation, in their intelligence, in their brains. It is very minute. Difference is in their nerves. किसने अपने nerves उस tension में better hold किए. So nerves कैसे आप hold कर सकते हो? You can hold it with confidence. Confidence किसका? Question कितना भी difficult है, next question जो होगा वो मैं solve करूंगा. Next नहीं हुआ तो उसके बाद वाला मैं जरूर solve करूंगा. इफ यू गेट डीमोटिवेटेड इन द एग्जाम तो आपका पूरा एग्जाम खराब हो जाता है. हम इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे कि नीट 2025 का जो पेपर था इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. यू नो मेरे सेंटर में ऐसे बहुत बच्चे थे हु स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर सीइंग दैट पेपर. उनसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था. उस एनवायरनमेंट में भी जिन बच्चों ने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन किया, अपने नर्व्स मेंटेन किए, वही दे मैनेज टू गेट अहेड ऑफ द क्राउड. यू नो. सो Now utilize core resources. Core resource utilize करने से पहले क्या जरूरी है? We need to identify what is our core resource. नीट के लिए मेरे बारे में नहीं कहूंगा तो core resource was NCERT. नीट का जब मैं कोचिंग कर रहा था ना, सो बायो और केमिस्ट्री में कोचिंग में आई वाज गेट लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर आउट ऑफ एनसीईआरटी. वो भी हमें पढ़ाए जाते थे बट मैंने कभी भी उन्हें अपना प्राइम फोकस नहीं बनाया, अपना कोर रिसोर्स नहीं बनाया. क्यों नहीं बनाया? बिकॉज मैंने पिछले 5 साल के नीट के पेपर्स एनालाइज किए थे. आपको आपके जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी कोचिंग मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको गाइडेंस ऑफ कोर्स देते हैं, दैट इज अनडिनाइबल. लेकिन किसी भी एग्जाम का जो आपको ट्रू इमेज मिलता है वो आपको आपके पास पेपर्स से मिलता है. दे शो यू द ट्रू इमेज कि क्या ट्रेंड है इस एग्जाम का. तो पास पेपर्स के बेसिस पे यू नीड टू आइडेंटिफाई योर कोर रिसोर्स एंड उसे आपको अपना प्राइम फोकस बनाना है. सिमिलरली एनालिसिस इज आल्सो ऑफ आवर मिस्टेक्स, नॉट जस्ट द पास्ट पेपर्स. तो मैं अगर 11th की बात करूं, 11th के पहले 3-4 मंथ्स मैंने केमिस्ट्री एनसीईआरटी पे कोई ध्यान नहीं दिया. आई इग्नोर्ड इट. फिर मैंने एक मॉक टेस्ट लिया था आकाश इंस्टीट्यूट का AIAPS विच इज अ नेशनल लेवल नीट मॉक टेस्ट सिलेबस वाइज. तो मैंने जब अपना पहला मॉक टेस्ट दिया सो आई गॉट वेरी लो मार्क्स इन केमिस्ट्री. तो तब जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया, सेइंग कि दीज आर आउट ऑफ माय सिलेबस, दे डोंट कंसर्न माय कोर रिसोर्स. तब जो मुझे लगता था. बट फिर मैं जब 11th में हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो केमिस्ट्री पेपर से पहले आई रेड एनसीईआरटी फॉर द स्कूल एग्जाम. और तब मैंने रियलाइज किया कि अगर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो वो सारे क्वेश्चंस में कर सकता था. राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज आपके जो मिस्टेक्स हो रहे हैं. यहाँ पे यू सी अनदर एडवांटेज ऑफ हैविंग अ नॉर्मल स्कूल. कोचिंग में कर रहा था बट मुझे ये इंसाइट नहीं मिला कि मुझे एनसीईआरटी पे भी फोकस करना चाहिए. सो जब आप एक सब्जेक्ट को 2 अलग अलग एंगल से पढ़ते हो ना, देन यू फाइंड समथिंग न्यू ईच टाइम. You get some new insights, you get some new ideas. So that is the advantage of having 2 teachers in each subject, you may say. Having a normal school as well as a coaching. So now we'll talk about medical entrances particularly over the years. So engineering में क्या होता है? There is JEE Mains. JEE Mains के अलावा there is BITSAT, VIT EEE, there is MNCT. There are so many exams. मेडिकल में 2020 से पहले यही था
एम्स हो, एएफएमसी हो, स्टेट कॉलेजेस हो, सबके लिए डिफरेंट एग्जाम्स थे। 2020 में गवर्नमेंट ने एक एनएमसी एक्ट पास किया जिसके अंदर जितने भी मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, दे वर ऑल यूनिफाइड इनटू वन एग्जाम, नीट यूजी। उसी साल से नीट में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो बहुत बढ़ गए। And when I talk about UG courses, I'm not specifically referring to MBBS. It means your homeopathy, Ayurveda, dentistry, vet, all of them. So 2020 से और क्या चेंज आया? मेडिकल एस्पिरेंट्स को अगर पता होगा, 20 नीट का एग्जाम आउट ऑफ 720, ओके? 2019 तक के नीट के पेपर में कभी 700 क्रॉस नहीं हुआ था। 2020 was the first year that 720 hit हुआ एग्जाम में. That was the highest in 2020. 2020 में पेपर का जो लेवल था वो काफी नीचे आ गया। ये जितने भी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स हैं, these have always been NCERT centric, बट 2020 से ये पेपर NCERT फोकस्ड हो गया। सिर्फ बायो और केमिस्ट्री से ही बायो केमिस्ट्री सिर्फ NCERT से आने लगा। दैट ट्रेंड कंटिन्यूज इवन टिल टुडे। 2025 में जितने पेपर हुए हैं सब NCERT बेस्ड हुए हैं। अनदर रीजन कि क्यों मैंने NCERT को ही अपना कोर रिसोर्स रखा। सो अब आप इसमें सोचोगे कि अगर वैसे ही पेपर आए हैं तो 2024 और 2025 को अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि ये पिछले 2 साल में जो नीट हुआ है, दैट हैज बीन वेरी समथिंग ऑफ अ रोलर कोस्टर, यू मे से। 2024 का नीट एग्जाम वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। देयर वर सम केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, बहुत हाई रैंक इन्फ्लेशन था। एंड 2025 का पेपर उसका ठीक उल्टा हो गया। द पेपर वाज टू टफ। रैंक इन्फ्लेशन इज मतलब फिनिश कर दिया ऑलमोस्ट रैंक इन्फ्लेशन को इस ईयर। तो 2025 में क्या डिफरेंट था? we'll see that on the next slide. 2025 was different this year. So अगर आपने किसी भी नीट फैकल्टी के कमेंट्स सुने होंगे जो पिछले 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, so they have said कि इस साल का नीट 2025 का जो पेपर था, they have never seen such a tough paper in any medical examination in their whole teaching career. इस साल का जो फिजिक्स था नीट में, दैट वाज इक्विवेलेंट टू जे मेंस लेवल, एक्सेप्ट कि क्वेश्चन के नंबर बहुत ज्यादा थे। वी हैव 45 क्वेश्चंस इन नीट ऑफ फिजिक्स फॉर अराउंड द सेम टाइम। केमिस्ट्री, इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन वर वेरी टफ। बायोलॉजी में दे हैड दैट कंस्ट्रेंट ऑफ दे हैव टू रिमेन फ्रॉम एनसीईआरटी। लेकिन सी बायो एनसीईआरटी में चैप्टर्स जो है ना, दे आर ग्रुप्ड इनटू यूनिट्स। जैसे देयर इज अ यूनिट कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे चैप्टर्स होते हैं। उस यूनिट की स्टार्टिंग में एक प्रीफेस जैसा दिया जाता है, लाइक इट इज फाउंड इन एनी अदर बुक, a small one paragraph introduction and the name of a scientist who has done considerable research in that field. नीट स्टूडेंट्स जो एट लार्ज होते हैं वो चैप्टर कंटेंट पूरा पढ़ते हैं, एवरी लाइन, एवरी साइंटिस्ट नेम, एवरी ईयर, कुछ बच्चे ईयर भी याद करते हैं जो मेन चैप्टर में है। बट ये एक पेज जो रहता है ना यूनिट के स्टार्टिंग में, ये बहुत टाइम्स हम इग्नोर करते थे, मैंने भी इग्नोर किया था। और इस साल नीट 2025 से उस एक पेज से 2 क्वेश्चन पूछे थे। 2 क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट टू 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का बायो का सेक्शन जो था वो उस एक पेज से पूछा था उन्होंने दिस ईयर। देयर वर लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड पेपर वाज क्वाइट टफ। अगर 10th के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो लेट मी पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट फॉर यू। मुझे इस साल 600 मार्क्स आए आउट ऑफ 720 एंड माय रैंक इज अराउंड 1300। अगर किसी को 600 आए होते 2023 में, उसका रैंक 21,000 से 22,000 के अराउंड होता। अगर 2024 में किसी को आए होते 600, उसका रैंक 80,000 से 85,000 के अराउंड होता। दैट इज जस्ट हाउ टफ दिस पेपर वाज। 2024 में जैसे 680 आए, वो कहीं 5,000 रैंक पे होगा वो स्टूडेंट, और इस साल जैसे 680 आए इस पेपर में आउट ऑफ 720, he is the all India topper. The highest has been 686 this time. तो हमने ये क्यों बात की about NEET? Because ये जो पेपर था, मतलब if I tell you about my mindset, हम फिजिक्स क्वेश्चन का जब मैं करता था 45 क्वेश्चंस, मेरा एम रहता था I completed it within 40 minutes, 10 minutes recheck, 10 minutes में OMR फिल कर दूंगा फिजिक्स का। उस माइंडसेट से मैंने पेपर स्टार्ट किया और मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने का, और पेपर सॉल्व भी नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस इतने टफ थे। मैंने से कहा इतने लोग रोने लगे। तो क्या था, दिस वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड पेपर, इट वाज अनप्रेडिक्टेबल, एंड बीइंग अनप्रेडिक्टेबल दैट इज एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो ट्रेंड 5 साल से सेट हुआ है वो अचानक 1 साल ब्रेक हो सकता है।
and we need to be prepared for that unpredictability. हमें उसे accept करना है और उसके लिए ready रहना है. So next slide. So now I share my personal subject methodology कि मैंने कैसे study किया. एक बहुत basic algorithm होती है. Physics, chemistry, bio सब में applicable है. First read your NCERT theory. Do NCERT questions. Back question, index question सारे question करो. And after that अपने PYQs करो and then go for your coaching material. क्योंकि जब आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करने के बाद पढ़ते हो कोचिंग की मटेरियल तो आप रिलेट कर पाते हो कि ये क्या रिलेवेंस रखता है, कहां से क्वेश्चंस आए हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. स्पेसिफिकली कोर रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी इज अ कोर रिसोर्स फॉर ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. केमिस्ट्री बायो में एक ही कोर रिसोर्स इज इनफ, दैट इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. फिजिक्स में यू शुड आल्सो रेफर टू योर कोचिंग मटेरियल. क्यों? क्योंकि फिजिक्स में फिजिक्स NEET physics is a lot about accuracy, how fast you can solve a lot of questions. जिसके लिए कोचिंग में जो आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स, जो शॉर्ट फॉर्मूलाज पढ़ाते हैं, those are very important for physics. And PYQs. PYQs में फिजिक्स में आपको कितने भी पुराने PYQs मिले, you can solve all of them. क्योंकि फिजिक्स में जो मेन थ्योरी है ना, वो along the years सेम रहा है. जो चेंज होता है वो होता है क्वेश्चन का फ्रेमिंग. And the more number of questions you do, the better you get. अगर difficult question भी किए तो जैसे easy पेपर आया तो आपको benefit ही है उसका, और ऐसा tough पेपर आया तो आपको question solve कर पाओगे. But for biochemistry, this is all again based on past year analysis जो मैंने जो follow किया था. Biochemistry में you can limit yourself to the PYQs of 2020 and after. उससे पहले के PYQs do not concern you because the pattern of questioning was different. तो ये strategy जो है ये आपको खुद बनानी होती है based on whatever exam you are wishing to tackle, and you need to evaluate this yourself. Next slide. The balancing act, school, exams and boards. तो frankly मुझे नहीं पता है कि मैंने कैसे बैलेंस किया सब कुछ. It is a very taxing journey. एक जो सबसे सिंपल थिंग है that is you have to follow your timetable, you have to be on top of your things. अगर आप अपनी चीजें टाइम से कंप्लीट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सब चीज बैलेंस कर सकते हो. टाइम टेबल बनाना उसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक होता है कि टाइम टेबल जो आप चेंज करते हो, राइट, यू हैव टू प्रायोरिटाइज इट. कि जैसे जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं तो दिसंबर तक मुझे अपना कोचिंग का सिलेबस थोड़ा ज्यादा करके करना है ताकि मैं प्रैक्टिकल्स के टाइम में उस पर फोकस कर सकूं. बोर्ड एग्जाम्स में अगर कोचिंग अभी नहीं हुआ है लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत लंबा स्ट्रेच है बीच में, you can take a few days off, then you have to decide it for yourself कि आप कहाँ पे टाइम निकाल सकते हो. And another thing is integrated syllabus. बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम का सिलेबस इज टोटली डिफरेंट. दे स्टडी फॉर इट एट डिफरेंट टाइम्स. मैंने ऐसे टाइम टेबल्स देखे हैं जिसमें मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने अलग से टाइम निकाला था फॉर कोचिंग, कॉम्पिटिटिव एंड अलग से बोर्ड, सेपरेट टाइम निकाला दोनों के लिए. वैसा करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने वैसा नहीं किया. You can follow an integrated syllabus. दोनों का 70-80% syllabus same होता है. They are not disjoint, but they overlap. So you can save your time that way by doing them together. And this, all that I talked about, we can go to the next slide. All that I talked about, this was about my journey, my thought process, my experience. मैंने मेडिकल के लिए प्रिपेयर किया. हो सकता है कोई जे देना चाहता हो, कोई रिसर्च में जाना चाहता हो, someone can take commerce as a stream, humanities. It is all up to you. सबकी जर्नी यूनिक होती है, सबके स्ट्रैटेजीज यूनिक होते हैं. आप किस टाइम पे क्या पढ़ सकते हो, क्या सब्जेक्ट डिफिकल्ट है आपके लिए, क्या इजी है, यू आर द बेस्ट जज ऑफ दैट. बट द वन थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल ऑफ दिस इज दैट कि अगर आपको किसी भी स्ट्रीम में अपने पसंद के टॉप कॉलेज में जाना है, then you need to be focused, you need to be resilient, you need to have a plan, and you must lead a balanced life. So that will be all from my side. Thank you, and all the best for your future. If you guys have any questions, then so if you guys have any questions for me, then we can take that now.
97% in them. So of course वो सबके लिए different हो सकता है. I used to do my self study from 10 to 11 and 3 to 4. वो मेरा broad time था. स्कूल से आने के बाद और कोचिंग खत्म हो जाने के बाद रात में 1 घंटा. सो यस ऐसा होता है कि कभी कभी आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते हो. योर माइंड गेट सैचुरेटेड. सबसे बेस्ट है कि यू डू समथिंग एल्स. अगर आप सब्जेक्ट से सैचुरेट हो गए देन स्टडी अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट. यू कैन रीड अ स्टोरी बुक, यू कैन टेक अ स्ट्रोल थ्रू योर society, whatever, to just distract yourself for 15-20 minutes. And when you again feel like अब तुम ready हो to study more, then you can return back. काउंसलिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है नीट का, बट आई एम होपफुल एंड I'll get into one of the top 5 teams. सो कन्विक्शन अगर लूज करना है दैट इज कंप्लीटली फाइन, लेकिन वो कन्विक्शन 11th-12th के बीच में लूज नहीं कर सकते. राइट, लाइक आई सेड, अगर नहीं हो पा रहा यू नीड टू डिसाइड दैट बाय 10th एट लेटेस्ट. 11th-12th के बीच में यू सडनली से कि अब नहीं हो पाएगा, अब मुझे कुछ और करना है, तो वो स्ट्रीम स्विच करना इज मतलब इट मेक्स नो सेंस एक्चुअली. 6 months. Not yet. I haven't decided what I want to specialize in. Just a question. How did you discover that you actually had an interest in the biofield except for the marks? मतलब वो जब तुम कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हो तो नेचुरली आता है. यू गेट दैट ट्यूनिंग विद सम सब्जेक्ट. इट इज लाइक विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. फ्रेंड्स भी जो हम बनाते हैं तो फ्रेंड्स का कैसे है, यू मीट समवन एंड उसके साथ तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर वो अपने आप मैच करता है. राइट, इट इज द सेम विद सब्जेक्ट. यू कैन ट्राई टू स्टडी सम सब्जेक्ट्स, दैट इज व्हाई 10 तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एंड यू कैन सी किस सब्जेक्ट में यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड. Who was your role model? My my role model was my mother. She is a single parent, and matlab, I have seen her from my childhood as working very hard, right? So yeah, it depends on your stream. Medical के लिए yes, Akash is the best coaching. Just need a study need. When we are in coaching, they start us from the neat syllabus, like from structure organizing yourself. But in the school, we start from the first lesson, second lesson, and go by study, like chapter wise. So how to cope up with that thing? Like in coaching, mock tests are there.
So it makes so burden to cope up with coaching studies of mostly bio and of school also. Yeah, actually that is a very great point. ये conflict होता है, often times होता है कि coaching कहीं और से start करता है, school कहीं और से start करता है. तो इसमें you have to prioritize कि आपको क्या करना है. जैसे मेरे साथ एक क्लास होता था तो मैं इसमें coaching को preference देता था. That is what I did. Coaching के syllabus के flow था. I used to pay attention in classes. तो basic मुझे उन chapters का पता चल जाता था. But if there was such a clash, then I used to prefer the coaching. But then what about school exams? स्कूल एग्जाम्स के लिए जैसे पढ़ने की आपको जरूरत होती है सो दैट आप क्लासेस करके वो कर सकते हो क्लासेस में वट एवर टीचर्स टेल यू दे कीप गिविंग यू सम टिप्स कि यू शुड स्टडी फ्रॉम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वो सब करके यू कैन डू गुड इन स्कूल एग्जाम्स Thank you. You mentioned co-curricular, so how much time did you give for co-curricular and how much time did you give for studies? सो आई डिडंट गिव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर को-करिकुलर्स जैसे मैं 45 मिनट्स का एक म्यूजिक क्लास करता था फ्रॉम अ लोकल सोसाइटी टीचर वंस अ वीक सिमिलरली मैं थोड़ा बहुत सॉकर भी खेलता था फॉर 1 आवर इन अ वीक आई डिडंट गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट How did you structure your studies? Structure my studies. Are you asking about the timetable? What did you do when you were studying? So, मतलब, is there any specific subject you want to know about? Yeah. तो आई टोल्ड यू अबाउट फिजिक्स का जो मेरा मेथोडोलॉजी था एनसीईआरटी सी बायो में अगर ये स्टूडेंट्स को पता हो बायो का एनसीईआरटी यू हैव टू स्टडी वेरी थॉरली बट फिजिक्स में उतना लाइन बाय लाइन याद करने का जरूरत नहीं होता है यू डोंट नीड टू डू सो मच रोट लर्निंग इन फिजिक्स सो व्हाट आई डिड वाज मैं एक पेंसिल लेता था और मैंने अपने सारे एनसीईआरटीज में ही जो लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे वो मैं अंडरलाइन करते जाता था विद अ पेंसिल आई डिडंट मेक सो मेनी you know sticky notes and highlighter वगैरह मैंने कुछ नहीं किया आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग दैट केस बट हाँ तो यू कैन अंडरलाइन विद पेंसिल और जब रिवाइज करते हो उस चैप्टर को जस्ट रीड द लाइंस दैट यू हैव अंडरलाइंड यू नो तो उससे आपका वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है So basically, until and unless आपको abroad जाना है right after your 12th, तो उसमें प्रोफाइल बिल्डिंग प्लेज नो रोल नीट में कितने मार्क्स है उसी में मेडिकल कॉलेज एडमिशन मिलता है सो साइंस 10 के जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए प्रोफाइल बिल्डिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई कैन नॉट रियली टेल यू क्योंकि मैंने किया नहीं uh, 96.6%. uh, तो आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन का वो सेम है आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या यू हैव टू बी रेजिलिएंट राइट एंड रेजिलियंस इज कल्टिवेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स मतलब आजकल मेरा जो सोशल मीडिया का एक ऐप में यूज करता था फॉर माय 11th एंड 12th इट वाज ओनली व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मैंने शायद 1 वीक पहले डाउनलोड किया हाँ एक्चुअली यू नो व्हाट बहुत बार ऐसा होता है कि इफ यू हैव इंस्टाग्राम उस पे रील्स आते हैं सो स्टडी में जब आपको ब्रेक लेना होता है सो यू स्टार्ट स्क्रोलिंग ऑन रील्स ओनली यू टेक 10-15 मिनट्स जितना भी आप ब्रेक लेते हो बट व्हाट हैपेंस इज कि सोशल मीडिया देख के या डिजिटल कुछ देख के आपके माइंड रिलैक्स हो नहीं पाता है
Your energy instead of increasing it goes down. इसीलिए जब आप वो ब्रेक लेके फिर से पढ़ने जाते हो, you feel just as tired, you don't feel refreshed. और इसीलिए जो आप फिर पढ़ते भी हो उसका वो इंपॉर्टेंस नहीं रहता, it does not give you the same output. Am I audible till there? I guess I am. Already. So I wanted to ask, like usually when we are studying, there are times when we do not score as much as we want, or we feel demotivated, or we feel completely burnt out. We start doubting ourselves. So I wanted to ask how to come out of that self-doubt, or how to start seeing myself as I can do it more often at times. So I wanted to know get tips from you. या सो यस, ये होता है कि एक मॉक टेस्ट दिया उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, सो यू फील डीमोटिवेटेड, फिर से पढ़ने का मन नहीं करता है. ऐसा एक्चुअली इफ आई टेल यू, तो मैंने जब नीट का एग्जाम दिया था तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे और थोड़े मार्क्स आए. सो जब नीट का रिजल्ट आया तो आई ऑल्सो फेल्ट वेरी डिजेक्टेड इनिशियली. हाँ, लेटर मुझे इतना रिएक्शन मिला लोगों से, सो इट टोल्ड मी हाँ इट इज अ गुड मार्क्स एक्चुअली. बट उस पीरियड में बेस्ट है दैट यू लीव स्टडीज फॉर अ व्हाइल. 3-4 days यू टेक अ ब्रेक, यू डू समथिंग एल्स, यू एंगेज इन सम अदर एक्टिविटी, आप रिलैक्स करो एंड देन रिटर्न टू इट आफ्टर 3-4 days. Well, we talk about PCB right now, but you were a PCMT student. So how did you balance PCMT? सो फॉर मैथमेटिक्स ऐसे मैंने घर पे बहुत कम प्रैक्टिस किया, मिनिमल प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स. माय मैथ्स टीचर शी यूज्ड टू टेक दिस एक्स्ट्रा क्लासेस एवरी फ्राइडे. तो मैंने ऑलमोस्ट पूरे ईयर में वो एक्स्ट्रा क्लासेस डिलिजेंटली अटेंड की और वहीं में मैंने ज्यादातर मैथ्स प्रैक्टिस किया. मैथ्स मैंने, इफ यू आस्क व्हाई आई टुक मैथ्स, तो मैथ्स मैंने लिया फॉर फिजिक्स बेसिकली. बिकॉज सी 11th का जो फिजिक्स होता है या 12th का जो फिजिक्स होता है उसमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं ना, वो जो प्योर मैथ्स स्टूडेंट्स है उन्हें भी याद नहीं रहते हैं. द फॉर्मूलाज आर कॉम्प्लिकेटेड, दे आर नॉट इजी. तो अगर कोई मैथ्स लिया ही नहीं है, वो मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहता, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. Uh, so I didn't use any special reference books. I did my coaching material and I had a book for PYQs. अगर ऐसे, what do you want to do? PCM, okay. So for engineering, as far as I know, there is this physics book called Resnick Halliday. I didn't go very deep into questions with Resnick Halliday, but मैंने उनका theory पढ़ा था and it was recommended to me by a lot of teachers. So for physics, I think you can try Resnick Halliday. Maths के लिए, if I talk from the board's perspective, then doing NCERT exemplar is more than enough for maths. आपको भी दिख रहा है? So I think all the questions are done. Thank you. Thank you so much, Ashutosh, for such an incredibly